Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, dear viewers, special dear students. One again, myself, Abbas Kacho, lecturer zoology, presently at Boys High Secondary School, Kage. So, dear students, our topic is types and functions of placenta. So, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया about placenta के बारे में. So, placenta, that's हमने देखा कि it is a temporary mechanical and physiological connections between मैटरनल टिश्यू एंड फीटस और मैटरनल टिश्यूज के बारे में कनेक्शंस था. ऑलरेडी थोड़ा हम रिवाइव करें. सो दिस इज द फॉर एग्जांपल दिस इज द मैटरनल लेयर एंड हियर दिस विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लेसेंटा. ये जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज फ्रॉम इम्ब्रियो से बन रहा था, दैट इज द मैटरनल टिश्यू. ये वाला मैटरनल टिश्यू है, दिस इज द मैटरनल पार्ट. And this is the fetal part, this is the embryo, and this is the maternal part that forms decidua. जिस तरह हमने वहां पे डिस्कस किया, decidua basalis. दो पार्ट्स इस तरह प्लेसेंटा बन रहा था. प्लेसेंटा is formed from two parts. One is chorionic part, that is fetal membrane, और जो दूसरा पार्ट था, that is maternal tissue या maternal part. Maternal part, and it forms by that is known as decidua. So जो प्लेसेंटा बन रहा था, दो पार्ट्स बन रहा था. एक फीटल मेम्ब्रेन that is chorion बना रहा था, और दूसरा मैटरनल जो पार्ट that is called decidua बना रहा था. This is the chorionic villi. This ये जो फिंगर लाइक है, that is chorionic villi इसको बोलते हैं. chorionic villi फॉर्मेशन जो chorion बना रहा था, and it forms fetal part. ये जो fetal membrane था, and this is the decidua basalis, that is the maternal part. Maternal tissue or maternal part जो ये वाला था decidua basalis, जिस तरह हमने देखा कि this embryo is covered by endometrial membrane, that is part of decidua, that is decidua capsularis, and this is the part which is not connected with the embryo, that is decidua parietalis. So this is the structure of placenta. Already हमने last classes में देखा था कि how this placenta is formed, कि mainly chorion part और maternal part बना रहा था. chorion part ये जो membrane बना रहा था, chorionic villi बना रहा था in case of humans में, and this the maternal part decidua जिसको बोलते हैं, जो तीन टाइप्स के थे, decidua basalis, parietalis और capsularis. So इसके बाद हम types of placenta थोड़ा डिस्कस करेंगे. What are the type of different types on the basis of different basis placenta is of different type. सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे that was on the basis of layers. Layers की बेसिस पे, on the basis of layers, कितने layers यानी that was कौन सा एक्सट्रानिक मेम्ब्रेन यानी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया. चार टाइप्स के थे. that was yolk sac हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. yolk sac प्लस that was membrane. दूसरा था amnion, तीसरा था allantois, और चौथा था chorion. दिस इज ऑफ 4 टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि कौन सा मेम्ब्रेन प्लेसेंटा बना रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फीटल मेम्ब्रेन. ऑन दिस बेसिस देयर आर मेनली 3 टाइप्स. वन इज yolk sac placenta. Yolk sac placenta. In case of yolk sac placenta, the placenta is formed from yolk sac and chorion. दो लेयर बनाते हैं. वन इज yolk sac और दूसरा chorion, और दूसरा chorion बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं yolk sac placenta. yolk sac placenta, one of the best example आप डिस्कस करेंगे that was in marsupials. मार्सुपियल्स एनिमल्स या पाउच एनिमल, फॉर एग्जांपल कंगारू वगैरह, उनमें जो प्लेसेंटा बनता है, दैट इज नोन एज yolk sac placenta, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, दैट इज yolk sac एंड अदर इज chorion. अब जो सेकंड टाइप उसी में है, दैट इज नोन एज allantoic placenta या allantoic placenta. allantoic placenta यानी नेम इंडिकेट्स कि यहां पे जो प्लेसेंटा बनता है, 2 लेयर्स बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो दैट इज allantois बनाता है एक, और दूसरा जो बनाता है chorion.
दो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, वन इज एलेंटॉइड, दूसरा कोरियन. That type of membrane is placenta is known as allantoic placenta. So is one of the examples that was most of eutherian mammals. Eutherian means placental mammals. Placental mammals में जो placenta बनता है उसको बोलते हैं allantoic placenta because they are formed from एक allantois बनाता है, दूसरा कोरियन बनाता है. तो such type of placenta is allantoic placenta. And third type जो प्लेसेंटा है that is कोरियोनिक प्लेसेंटा. कोरियोनिक प्लेसेंटा यानी नेम इंडिकेट्स कि यहां पे सिर्फ कोरियन जो आउटर मेम्ब्रेन से वो सिर्फ मेम्ब्रेन. फॉर एग्जांपल इज प्राइमेट्स दैट इंक्लूड्स ह्यूमन. इनमें जो प्लेसेंटा बनता है दैट इज कॉल्ड कोरियोनिक प्लेसेंटा बिकॉज सिर्फ कोरियन, यहां पे आप देख रहे हो सिर्फ कोरियन इन्वॉल्व होता है प्लेसेंटा फॉर्मेशंस में, बाकी मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है. तो सच टाइप ऑफ दिस प्लेसेंटा इज कॉल्ड कोरियोनिक प्लेसेंटा. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर के बेसिस पे दैट वाज 3 टाइप ऑफ प्लेसेंटा हमारे पास है. वन इज यॉर्क सेक प्लेसेंटा जहां पे सिर्फ यॉर्क सेक बनाता है in combination with chorion. That is example आप अगर देना चाहो तो marsupials और pouch mammals में आप देख सकते हो. Second type is allantoic placenta. यहाँ पे allantois involved होता है chorion this placenta formation में in addition with chorion. Example eutherian और जिसको बोलते हैं placental mammals. और third type is on the basis of this chorionic that was third is chorionic placenta. यहां पे सिर्फ कोरियन इन्वॉल्व होता है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज प्राइमेट इंक्लूडिंग ह्यूमन कि जहां पे सिर्फ कोरियन का इन्वॉल्वमेंट होता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में. सो दिस आर फर्स्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेयर फॉर्मेशंस. एंड सेकंड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ this on the basis of behavior of placenta during second type is on the basis of behavior of placenta during parturition. यानी parturition यानी आगे की टॉपिक आप डिस्कस पढ़ोगे कि that was expel of baby after fully formed कि उस वक्त उसका बिहेवियर किस तरह रहता है. So on that basis there are 3 types mainly. One is deciduate placenta. Deciduate प्लेसेंटा यानी डिसिडुएट प्लेसेंटा उसमें क्या होता है जब पार्चुरेशन होता है बेबी बॉर्न हो जाता है उस वक्त यानी दैट प्लेसेंटा हमने देखा उसमें दोनों पार्ट था, एक मैटरनल पार्ट भी था एक फीटल पार्ट भी था. सो ड्यूरिंग पार्चुरेशन व्हेन देयर इज बोथ द लेयर इज लॉस्ट, अगर दोनों लेयर लॉस होता है, मैटरनल पार्ट भी कुछ लॉस हो जाता है और फीटल पार्ट भी कुछ लॉस्ट हो जाता है, उस टाइप ऑफ प्लेसेंटा को बोलते हैं डिसिडुएट प्लेसेंटा. एग्जांपल्स आप दे सकते हो दैट इज इन केस ऑफ ह्यूमन और प्राइमेट्स कि जहां पे सम सॉर्ट मैटरनल टिश्यू भी लॉस हो जाता है और फीटल टिश्यू भी लॉस हो जाता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन. सच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज डिसिडुएट प्लेसेंटा. सेकंड टाइप इज नॉन डिसिडुएट प्लेसेंटा. नॉन डिसिडुएट प्लेसेंटा यानी कुछ एनिमल्स में जब पार्चुरेशन होता है देयर इज लॉस ऑफ ओनली फीटल टिश्यू, फीटल पार्ट ही लॉस्ट हो जाता है और वहां पे जो मैटरनल पार्ट जो होता है दैट रिमेन इंटैक्ट, वहां पे एज इट इज रहता है, वहां पे कोई लॉस नहीं होता. सच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड नॉन डिसिडुएट प्लेसेंटा. एंड जो थर्ड टाइप है दैट इज कंट्रा डिसिडुएट. कंट्रा डिसिडुएट प्लेसेंटा. कंट्रा डिसिडुएट प्लेसेंटा मींस कि जहां पे दोनों, जिस तरह हमने देखा कि इंटीग्रेशंस में देयर इज एक मैटरनल पार्ट भी है एक फीटल पार्ट भी है. सो जब पार्चुरेशन जो हो जाता है ओनली फीटस जो होता है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से और वहां पे दोनों लेयर एज इंटैक्ट रहता है और दोनों लेयर वहां पे कोई लॉस नहीं होता. सच टाइप ऑफ placenta is called contra deciduate placenta. So these are different types on the basis of that was behavior की basis पे था और इससे पहले हमने देखा लेयर की basis पे. इसके बाद भी historical basis and other basis है कि these are की mainly basis है कि that was placenta का type. इससे हमने पहले भी डिस्कस किया इससे. और on the basis of histology that human placenta is metadiscoidal. Metadiscoidal
and hemochorial type of placenta. यानी मेटाडिस्कॉइडल में क्या होता है? मेटाडिस्कॉइडल में when the at the blastula stage, implantation stage, वो बिल्कुल embryo जो होता है that is fully covered हो जाता है by the endometrium of the fetus. इसके बाद when it grows की ये वाला part that remove हो जाता है एंड सिर्फ वो जो कनेक्शन जो होता है वो डिस्क एरिया में कन्फाइंड रहता है, सो दैट इज कॉल्ड मेटाडिस्कॉइडल. इसलिए ह्यूमन के प्लेसेंटा बोलते हैं मेटाडिस्कॉइडल. अनदर टाइप हीमोकोरियल, यानी यहाँ पे ओनली कोरियन जो होता है एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन में वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, बाकी कोई दूसरा मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं कोरियल प्लेसेंटा. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस आर द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा that is on the basis of different basis, on the basis of histology हमने देखा, on the basis of this behavior and on the basis of layer की basis में these are different types of placenta. इसके बाद हम डिस्कस करोगे now function of placenta. important is the तो एग्जाम्स में काफी बार पूछा हुआ है, that is functions of placenta. what are the function of placenta? As far as function of placenta is concerned, placenta performs different important functions. सबसे पहला जो functions हम डिस्कस करोगे that is nutritive organ. Nutritive organs, यानी आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा इट इज अ कनेक्शंस बिटवीन fetus and maternal tissue. तो क्यों होते हैं connections? One of the important functions is nutritive organ, because सारा जो nutrition, because the embryo is totally depend on the mother for its development. So जो भी nutrition है यानी mothers ले लेती है, such as this amino acids हुआ, vitamins हुआ, that was sugars हुआ, all these nutrients जो होता है that taken by the fetus through placenta from the mother से placenta के द्वारा लेता है, so it is a nutritive organs का काम करता है. Second जो important functions है that is respiratory organ. Respirations, that is, as you know dear students, that is the exchange of gases humans में, that is exchange of carbon dioxide and exchange of oxygen. वो जो exchange होता है वो through placenta के द्वारा होता है, because placenta connects the fetus with the placenta connects fetus with the mother. So जो भी respiration यानी fetus also needs energy, उसके लिए breakdown of oxygen, food के लिए oxygen चाहिए, वो oxygen कहाँ से ले जाता है? through placenta के द्वारा जाता है mother से baby में, and it also वहाँ पे जो carbon dioxide जो बनता है, that carbon dioxide is वो remove हो जाता है from the mother's body to from the fetal body to the mother's, and ultimately that eliminates through the mother's lungs. So it also acts as a respiratory organ. जिस तरह हमारे यहाँ पे lungs function करता है, तो fetus में placenta is a respiratory organs का काम करता है, one of the important functions. And third type जो functions perform करता है, so that is the digestive organ. Digestive organs, as you know that digestion is the breakdown of the food. तो कभी कभी क्या होता है, sometimes the trophoblast of the placenta break down some of the complex foods such as protein वगैरह, proteins. These proteins are digested before they enter into placenta or fetus. Fetus में जाने से पहले placenta उसको क्या करता है? digest करता है. So these placenta also act as a digestive organ. जिस तरह हमारा digestive system काम करता है breakdown of complex food के लिए, तो some sort कुछ proteins वगैरह का भी digestion किसमें होता है? That placenta में ये चीजें होता है. Next is excretory organ. Excretory organ. Excretions, dear students, as you know, that is the removal of waste from the body. जिस तरह हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया बनता है हमारी बॉडी में, यूरिक एसिड्स बनता है, दिस वेस्ट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. इनको बॉडी से किसी भी हाल में रिमूव होना है, बिकॉज इफ दिस वेस्ट इफ रिमेन विद इन द बॉडी इट इज टॉक्सिक फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, तो फंक्शंस नहीं कर पाएंगे. सो सेम ऑल्सो फीटस के अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है, देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशंस ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड्स एंड अदर वेस्ट. This waste has to be removed. So
प्लेसेंटा के द्वारा दिस वेस्ट प्लेसेंटा के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट करता है मदर की ब्लड में, और मदर की ब्लड के बाद वहां से फिर मदर के किडनी के द्वारा दिस वेस्ट हैज रिमूव्ड. सो प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द fetus. So it is the excretory organs, इसलिए इसको बोलते हैं excretory extra embryonic. That was kidney का functions भी इसको यहाँ पे बोलते हैं placenta को. Fifth part is it act as storage organ. Storage organs, as you know dear students की हमारे बॉडी में when there is excess amount of glucose, जब हद से ज्यादा होता है तो some sort of glucose is stored. कहां पे? खासकर हमारे लिवर में स्टोर होता है, हमारी that was कुछ मसल्स में स्टोर होता है, ग्लाइकोजेंस वगैरह. सो जब तक लीवर फुल्ली नहीं बनता है fetus में, उस वक्त some sort of glycogen that is stored within the placenta. हाँ, for example glycogen as you know कि that is the कॉम्प्लेक्स शुगर हमारे स्टोर होता है. ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है हमारे लिवर सेल वगैरह में. तो बिफोर फॉर्मेशन ऑफ लिवर एंड ऑल दीज ग्लाइकोजेंस आर स्टोर्ड विद इन द प्लेसेंटा. हमारे दिस प्लेसेंटा में स्टोर होता है फीटस के. तो दिस प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज द दिस क्या नाम है स्टोरेज ऑर्गन्स. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्लेड बाय placenta that it acts as endocrine organ. Endocrine organs, endocrine dear students, as you know that the systems of जो glands हमारी body में होता है that secretes different types of hormones which is important for our metabolic activities and growth and development. तो वो जो hormones जो होता है, some of the hormones that secrete from placenta that includes HCG, one of the important hormone HCG that is human chorionic gonadotropin. HCG हार्मोन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हमारी प्लेसेंटा से सिक्रेट करता है एंड इट मेंटेन आवर कॉर्पस ल्यूटियम्स. वहां पे ह्यूमन्स फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करते हैं आफ्टर दिस ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन ताकि वो पूरे प्रेगनेंसी टाइम में उसको मेंटेन रहे. सो दिस सिक्रीट फ्रॉम प्लेसेंटा. इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट में जो हार्मोन टेस्ट लेते हैं डॉक्टर्स दैट इज HCG टेस्ट करते हैं कि ये जो प्रेग्नेंट है कि नहीं. तो HCG हार्मोन्स वहां पे प्रेजेंट होने की वजह से कंफर्म हो जाता है कि शी इज प्रेग्नेंट. सो इसके अलावा दिस सम सॉर्ट ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन यहां पे सिक्रीट होता है, सम सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोजन. ये जो मेनली गोनेडियल फीमेल हार्मोन है, आप जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, एस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FA जो सिक्रीट करता है, और इसके अलावा HPL दैट वाज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. ये जो हार्मोन्स है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस प्लेसेंटा. दीज आर सम सॉर्ट. तो प्लेसेंटा एक्ट एज ए इंडोक्राइन ऑर्गन की उस वक्त दिस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है. सो इट्स एक्ट एज ए इंडोक्राइन ऑर्गन. नेक्स्ट जो हम फंक्शन करोगे दैट एक्ट एज ए स्टोरेज, दैट्स क्या नाम है, इट एक्ट एज ए पैसिव इम्यूनिटी. Passive immunity means that are defense systems that is provided inside our body. So placenta, some sort of placenta that secrete IgG, that is immunoglobulin G जो होता है प्लेसेंटा सिक्रीट करता है IgG, और उस वक्त जो IgG जो होता है that transmit directly from mother to fetus through this placenta. So placenta also act as a passive immunity or passive immunity organs for protecting the embryo from many diseases such as this diphtheria and other diseases. उनसे जो होता है measles वगैरह इनसे बचाता है, तो passive immunity provide करता है. Lastly हम डिस्कस करोगे that it acts as protective functions. Protective functions में that is barriers. Even though placenta act as a barrier, means बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह को इन फीटस में इंटर होने से बचाता है, लेकिन फिर भी there is some substance that pass from the fetus to pass from the mother to fetus. बहुत सारे उसमें chemicals and viruses होते हैं, chemicals and viruses जो प्लेसेंटा के द्वारा भी पास होता है. सो उनमें some chemicals देखा गया है that pass from the mother to fetus में पास हुआ है and cause
बहुत सारी डिफेक्टिव्स और डिफॉर्मिटीज और एबनॉर्मलिटीज फीटस में काज करता है, सच केमिकल्स आर कॉल्ड टेराटोजन। इन केमिकल्स को बोलते हैं टेराटोजेंस, यानी टेराटोजेंस आर द सिंथेटिक केमिकल्स दैट passes from the mother to fetus and cause abnormal development in the fetus, such is called as teratogen. One of the synthetic dangerous teratogen is thalidomide. थैलिडोमाइड जो होता है वन ऑफ द सिंथेटिक डेंजरस जो केमिकल्स देखा गया है दैट काज मल्टीपल डिफेक्ट इन द फीटस। फीटस में बहुत सारा मल्टीपल डिफेक्ट करता है, दैट आल्सो पास फ्रॉम प्लेसेंटा। इसके अलावा सिगरेट निकोटीन जो होता है केमिकल, निकोटीन फ्रॉम सिगरेट आल्सो पासेस थ्रू प्लेसेंटा। इसके अलावा बहुत सारे एडिक्टिव ड्रग्स सच एज हीरोइन, कोकेन, ये जो कुछ एडिक्टिव ड्रग्स होता है जो पास होता है फ्रॉम प्लेसेंटा में, फ्रॉम मदर्स टू फीटस एंड काज ऑलरेडी एडिक्शंस इन द दिस फीटस, और निकोटीन स्टेंट ग्रोथ करता है फीटस में। सो दिस आर सम ऑफ द केमिकल्स दैट आल्सो देखा गया है पास फ्रॉम द प्लेसेंटा। सो इट एक्ट्स एज अ बैरियर का काम करता है प्लेसेंटा that protects that these chemicals are passed. So this it is advised to the pregnant woman, इसलिए pregnant woman को हमेशा advise करते हैं कि they abstain from taking any drugs before it was advised by the gynecologist, यानी उनसे कंसल्टेशन के बगैर कभी किसी कोई ड्रग्स this pregnant woman को नहीं लेना चाहिए, because some drugs that it cannot harm to her, अगर उसको harm नहीं करता तो maybe it harms to fetus. So it is advised to pregnant women to avoid all such drugs without consultation from the gynecologist. So these are the different functions of the placenta that are performed by this placenta functions. There are different functions, तो overall हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे main functions, because that was nutritive functions. जो main functions है placenta का, that is nutritive functions and respiratory functions, यानी that was provide nutritions and all to the fetus, such as this vitamins, amino acids and all. And respiratory functions में that is the exchange of जो gases होता है between the fetus and mother, और placenta के द्वारा होता है. These are the main functions. In addition, digestive, some of the trophoblast digest करता है proteins वगैरह को before they passing into the fetus. इसके अलावा excretory functions में हमने डिस्कस किया कि excretion removal of the waste, क्योंकि बहुत सारा waste fetus के अंदर भी बनता है during metabolism. So उस वक्त बहुत सारे यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, they pass through the placenta to maternal tissue at last, that is removed from the kidney, so also act as excretory organ. इसके अलावा storage organ, some of the glycogens वगैरह that is stored within the placenta, so it act as a storage organs का काम करता है. Endocrine function बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा हार्मोन रिलीज किया जिस तरह हमने डिस्कस किया, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, some sort of estrogen and some HPL that was human placental lactogen जो मेमोरी ग्लैंड्स में डेवलप करता है. These are endocrine का फंक्शन. पैसिव इम्यूनिटी का काम करता है. पैसिव इम्यूनिटी मींस दैट ऑलरेडी उसको प्रोटेक्ट करता है फीटस को फ्रॉम बहुत सारे डिजीज से, सच एज मीजल्स, डिप्थीरिया, बिकॉज IgG इम्यूनोग्लोबिन G that is passed from mothers to fetus through placenta, so act as a passive organ. And last में प्रोटेक्टिव फंक्शंस, इवन दो प्रोटेक्शन का काम करता है. So इन दो बहुत सारे chemicals and viruses that pass through this placenta, some of the chemicals that cause defect in the fetus जिसको बोलते हैं teratogens. So one of the example of teratogens, synthetic drug that is thalidomide. It is a dangerous teratogens that cause multiple defect in the growing embryo or fetus. इसके अलावा बहुत सारा निकोटीन फ्रॉम द सिगरेट जो पास होता है, स्टंट ग्रोथ करता है फीटस में, और बहुत सारे एडिक्टिव ड्रग्स सच एज हीरोइन हुआ, कोकेन हुआ, इट आल्सो पास फ्रॉम दिस मदर्स टू फीटस थ्रू दिस प्लेसेंटा एंड कॉज addiction, advanced addiction in the fetus. So it is advised the pregnant women to avoid all such drugs before it was consulted from the gynecologist. So dear students, I think इससे आपको क्लियर हुआ होगा डिफरेंट फंक्शंस. बहुत इंपॉर्टेंट से कई बार एग्जाम से पूछा गया है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. सो दिस आर डिटेल अबाउट देयर फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.